کے ساتھ ہو۔ انجیل جلیل مقدس یوحنا کے مطابق۔ اس کے 20ویں باب میں سے ہم سنیں گے۔ اور اسی روز ہفتہ کے پہلے دن شام کے وقت جب اس جگہ کے دروازے جہاں شاگرد جمع تھے یہودیوں کے خوف سے بند تھے، یسوع آ کر بیچ میں کھڑا ہو گیا اور ان سے کہا، تمہیں سلامتی حاصل ہو، اور یہ کہہ کر اپنے ہاتھوں اور پسلی کو انہیں دکھایا۔ پس شاگرد خداوند کو دیکھ کر خوش ہوئے، اور یسوع نے پھر ان سے کہا، تمہیں سلامتی حاصل ہو، جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے میں بھی اسی طرح تمہیں بھیجتا ہوں۔ اس نے یہ کہہ کر ان پر پھونکا اور کہا کہ تم روح القدس لو، جن کے گناہ تم معاف کرو ان کے معاف کیے گئے ہیں، جن کے گناہ تم قائم رکھو ان کے قائم رکھے گئے ہیں۔ انجیل جلیل کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں معاف کیجئے۔ عزیز بھائی اور بہنوں، آج ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، خدا کی ساری برکتوں کے لیے، نعمتوں کے لیے، زندگی کے لیے، صحت کے لیے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ہمیں بہت ساری برکتیں عطا کی ہیں، اور آج خصوصی طور پر ہم اپنے درمیان ان بچوں کو جن کا استحکام ہونا ہے، نوجوانوں کو، ان کو تالیوں کے ساتھ خوش آمدید کہتے ہیں کہ سارے بچے بڑا مسکرا رہے ہیں۔ بچہ دیکھو آپ کتنے اہم ہیں۔ نماز ادھر ہر اتوار کو پہلے بھی ہوتی ہے، لیکن آپ کے لیے بشپ آئے ہیں، دیکھا کتنے آپ اہم ہیں۔ آپ لوگ بڑے خوش قسمت، اچھی بات ہے، کیونکہ آپ نہ صرف اپنے ماں باپ کا فخر ہیں، آپ پوری کلیسیا کا فخر ہیں، آپ قوم کا سرمایہ ہیں، اور آپ کی بڑے اچھے طریقے سے ماں باپ بھی پرورش بھی کرتے ہیں اور تربیت بھی کرتے ہیں، اور ابھی بھی آپ کی خصوصی طور پر ایک تربیت کی گئی، ایمانی تربیت کی گئی، تاکہ اب آپ اور بھی مضبوط ہو کر اپنے ایمان کی، اپنے کاموں سے گواہی دے سکیں۔ تو آپ بہت اچھے ہیں، اسی طرح سے اور اچھے بنے رہنا ہے، بڑھتے رہنا ہے، تعلیم حاصل کرنی ہے، کامیابیاں حاصل کرنی ہیں، ماں باپ کے لیے، ہم سب کے لیے ہمیشہ خوشی اور فخر کا باعث بنے۔ ایسے ہم دیکھتے ہیں کہ استحکام، پاک روح کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو یہ دکھائی جائے کہ پاک روح اس طرح سے ہے یا پاک روح کس طرح سے ہے۔ پاک روح جیسے ہم کلام میں دیکھتے ہیں ایک قوت ہے، ایک قوت ہے، ایک طاقت ہے، اور خدا اس وقت اپنے لوگوں کو دیتا ہے جب کسی بھی شخص کا، خصوصی طور پر جب اس کے ایمان کا امتحان ہوتا ہے، یعنی اس کا ایمان پرکھا جاتا ہے، ایمان پرکھا جاتا ہے، جب اس کے ایمان پر سوال آتے ہیں۔ ویسے پاک روح ہر وقت ہمارے ساتھ ساتھ ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے، قدم قدم پر ہماری حفاظت کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، ہماری ہدایت کرتا ہے، لیکن اس خصوصی طور پر جب ایمان کا، مثال کے طور پر کسی شخص کو پرکھا جائے کہ آپ عدالت میں جھوٹی گواہی دیں، اور ہم کہیں کہ ہم مسیحی ہیں، ہم جھوٹی گواہی نہیں دیتے، ہم کلام کی قسم نہیں کھاتے، جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے ہم پر کوئی اور مشکل پڑے۔ یسوع مسیح خود اپنے شاگردوں کو بتاتے ہیں، مقدس متی کی انجیل 10واں باب، کہ ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ لوگ تمہیں عدالتوں میں لے جائیں گے، بازاروں میں گھسیٹا جائے گا، اور مشکل وقت ہو سکتا ہے، لیکن گھبرانا نہیں ہے۔ اسی وقت، اس مشکل گھڑی میں، پریشانی میں، جب ایمان آزمایا جائے گا تو پاک روح تمہاری ہدایت کرے گا کہ تم نے اس وقت کیا کہنا ہے، کیا بولنا ہے، پاک روح ہدایت کرے گا۔ اور یہ ہم دیکھتے ہیں ابتدائی کلیسیا کی زندگی میں بھی، چاہے مقدس پطرس تھا، ان کو الٹی صلیب دی گئی، اور مقدس مرکز ہو،
तो हम देखते हैं कि खुदा हमेशा अपने लोगों के फिर साथ रहा। यीशु मसीह जब शागिर्दों को पाकरू की बात बताते हैं तो इसका मतलब ये भी है कि पाकरू हर कदम पर हम सब की भी रहनुमाई करता है। और इस लिहाज से यीशु मसीह की तालीम तमाम बाकी अंबिया की तालीम से फर्क होती जाती है। और फर्क इस तरह से होती जाती है कि यीशु मसीह मुकद्दस मत्ती के इंजील में ही पहला सबक जब देते हैं तो मुबारकबादियां हैं। मुकद्दस मत्ती के इंजील 5 बाब 5, 6, 7 तीनों बाब जो हैं वो पहाड़ पर दिए गए। पहाड़ी इसलिए उनको पहाड़ी वास कहते हैं। और यीशु मसीह ने जब अपने शागिर्दों को ये तालीम देनी शुरू की कि मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं, पाक दिल होना, तो ये इसका मतलब ये था कि ये नहीं है पाक दिल के लिए कि आप दिन में 6-7 दफ़ा नहा लें और शैम्पू वगैरह करें तो पाक दिल हो जाएंगे। ये पाक दिल, इससे पाक दिल नहीं हो सकता। पाक दिल का मतलब भी है कि अपनी सोच को, अपने ख्यालों को, अपनी नीयत को पाक साफ कर। जिसकी नीयत पाक हो जाएगी, जिसका ख्याल पाक हो जाएगा, जिसकी सोच पाक हो जाएगी, उसका खुद बखुद ही उसका दिमाग, ज़हनी कुव्वत और उसका दिल पाक हो जाएगा। यानी उसके जहन में किसी के बारे कोई बुरी सोच ही नहीं है, बुरी सोच। और ये क्यों कहा गया मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं? जब मिसाल तो मैं हूं, ठीक है, हमारे ये बच्चे सब जो भी है, जहां जहां भी हर कोई बैठा है, अगर 1 मिनट के लिए हम ये सोचें कि खुदा ने मुझे पाक और मासूम इस दुनिया में पैदा किया, ऐसे ही है कि नहीं जी? हर कोई, खुदा ने आपको पाक बनाया और पाकीज़ा रहने के लिए बनाया, पाकीज़ा रहने। और वो पाक और पाकीज़ा होना हम इसलिए दुनिया में पैदा। और इसके बाद खुदा ने हमें जो बड़ी नेमत दी वो है प्यार की, मोहब्बत की, मोहब्बत की, और मोहब्बत का फजल अता किया गया। और आप देखते हैं कि बच्चा छोटा सा भी होता है, चाहे वो 11 दिन का हो, 12 दिन का हो, 1 महीने का हो, उसको जब आप देखते हैं वो मुस्कुराता है, वो मुस्कुराए। और थोड़ा सा बड़ा हो जाए, माँ बाप हो सकता है उसको दूसरों को ना मिलने दे, लेकिन बच्चा हो सकता है सबको मिलने के लिए चल पड़े। तो ये जो मोहब्बत का जज्बा है, मोहब्बत की ताकत है, ये खुदा ने हर इंसान में, आप में, मुझ में पैदा किया। तो अगर जिस इंसान को भी ये पता चलता जाता है, हम जब बड़े हो जाते हैं सब चीजें भूल जाते हैं दुनिया की चीजों में आके। और हमने देखा कि जो आज की दूसरी तलावत है जिसमें पौलुस रसूल कहते हैं कि ये राज मुद्दतों से छुपा रहा, लोगों को पता ना चला, और हमें मसीह के जरिए ये राज पाक रूह की वसीले से हम पर जाहिर हुआ है, पाक रूह के जरिए से हम पर जाहिर हुआ है। इसलिए जब ये बात यीशु मसीह ने जब ये तालीम दी, शागिर्दों के लिए भी ये तालीम मुश्किल थी, नई तालीम थी। और अजीजों, जब हम यही सोचते हैं, अगर आप घर जाकर भी ये सोचें, वैसे हम कहते रहे ना कि हम पाक है, हमारा ख्याल पाक है, सोच है, लेकिन उसको देखना कैसे कि ये खराब कैसे हो गई? फिर अगर सब पाक है तो खराब कैसे हो गई? क्या खुदा ने हमें मोहब्बत के लिए बनाया गया या लड़ाई के लिए? क्या ख्याल है जी? लड़ाई के लिए तो नहीं बनाया, लड़ाई सीखी गई। अब देखें, बच्चा छोटा है ना, वो हर एक के मुस्कुराएगा, प्यार करेगा। और हो सकता है बच्चे को आपने गली में ले जाएं, दुकान पे ले जाएं, जिसका वाकफ नहीं उसकी तरफ भी देख के खुश हो सकता है उसकी तरफ चल पड़े, माँ बाप उसको रोकेंगे। क्या आपको कह सकता है खुदा ने मुझे लड़ाई के लिए पैदा किया, नफरत के लिए पैदा किया? खुदा ने किसी को, खुदा ने नफरत के लिए नहीं पैदा किया। खुदा ने मैं खुश रहने के लिए पैदा किया या उदास रहने के लिए पैदा किया? खुश रहने के लिए। इसलिए तो खुदा ने बाग अदन में रखा, नहीं तो खुदा किसी भट्टे पर माही हवाबाद आदम को रखा नहीं, खुदा ने उनको बाग अदन में रखा। और वहां दरियाओं का, पानियों का जिक्र किया गया, हर किस्म की चीजों का जिक्र किया गया, खुश रहने के लिए। ये सारी खुशियां आज भी आप में और मुझ में मौजूद हैं। ये हमारी अपनी तरबियत की वजह से। अब देखिए कि तरबियत कहां से आ गई?
तरबियत ये हुई कि हो सकता है बच्चे खेल रहे हों, मैं भी जब छोटा था, आप लोग भी छोटे छोटे से थे, तो कई दफा हो सकता है कि अम्मी की लड़ाई अपनी खाला अपनी बहन के साथ हो गई या बच्चों की नंद के साथ हो गई। तो हो सकता है कि वो अगर घर पे आए और उस तरह माँ ही बच्चे को बताए अभी इनको सलाम सलूम नहीं करना, हमारी इनके साथ खत्म हो गई। बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि पहले तो हम भाग भाग कर ये खाला को या फूफी के या मामी जो भी हो वो हमें उठा लेती थी या हम भाग कर चले जाते थे। अब कहा गया कि इनसे नहीं, हमारी नाराजगी हो गई। अब यहां से बच्चे में अगर बच्चा 100% प्यार के लिए बनाया गया, मैं आप सब अगर आप सोचें एक मैं प्यार के लिए बनाया गया, तो क्या है अब हमें 10% तकरीबन नफरत शुरू हो चुकी है। ये खाला से या फूफी से या ताया से या मामू से नहीं नफरत हुई, ये एक इंसान से नफरत शुरू हो गई। और इसके बाद हमने बच्चों को बताया कि बच्चों इनके साथ अभी नहीं खेलना। बच्चों को तो बच्चे चाहिए खेलने के लिए, क्या नहीं चाहिए? उनको क्या पता है कि अम्मी अबू की इनके साथ लड़ाई हुई या कि नहीं, उनको कोई पता नहीं। हमने बच्चों को रोक दिया। अब बच्चों को रोक दिया, बच्चे नाराज हो गए कि ये अम्मी अबू हमें बच्चों से खेलने नहीं दे रहे, नहीं खेलने दे रहे। अब उससे अम्मी और अबू के लिए भी बच्चे के जहन में नफरत पैदा हो गई कि ये हमारी खेल उजाड़ देते हैं, हमें खेलने नहीं देते, हमारी खेल से खुश नहीं होते। बच्चे के जहन में माँ बाप के खिलाफ भी नफरत, इसके साथ मायूसी पैदा हो गई, मायूसी भी पैदा हो गई कि हमारी गेम खराब कर। तो ये तकरीबन कोई 10-15-20% हमने और मायूसी पैदा कर दी बच्चे के अंदर। बच्चा आपको देखते हैं रूठ कर बैठ जाएगा, उसको कहेंगे खाना खा लो, कहेगा मैंने नहीं खाना खाया, रूठ जाए। तो कम से कम हमने को 30-40% उसके अंदर मायूसी, उसके अंदर दुखी रहना पैदा कर दिया। तो अभी बाकी जो है वो कोई तकरीबन 60-70% इसी तरह से उसको गुस्सा उसको दिलाया, और उसके अंदर जो खुशी का अंसर है वो रह गया तकरीबन कोई 30%। तो अजीजों, जब शागिर्दों और फिर इसके अलावा और भी दुनियावी तालीम, जब स्कूल में हम गए तो मैंने भी यही सीखा था। ईंट का जवाब क्या है? ईंट का जवाब क्या? ईंट का जवाब पत्थर। हमने भी यही सीखा कि अगर कोई मारे उसको भी 2 मार देखी जाएगी, नहीं तो यही सीख। ऐसे यीशु मसीह अपने शागिर्दों को जब तालीम देते हैं, शागिर्द परेशान होते। जैसे मैं बता रहा हूं, जब मैं भी कई दफा बचपन की बातें सोचता हूं, मैं सोचता हूं हम भी बचपन में इसका मतलब काफी कंफ्यूजन से गुजरे हैं। कंफ्यूजन से गुजर कर फिर ये सारी सीखी जो यीशु हमें सिखाना चाह रहे थे। यीशु को ने जब शागिर्दों को सिखाई बात के मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं, और फिर ये भी आखिर में मैं बताऊंगा कि यीशु मसीह ने बताया कि तुमने दुनिया में कैसे रहना है, सांपों की तरह होशियार भी रहना है, कबूतरों की मानिद भोले भी रहना है। ये कबूतरों की मानिद भोले का मतलब है कि तुम्हारी जो मासूमियत है, जो पैदाइश के वक्त तुम्हें दी गई थी और बपतिस्मा में उसको कायम रखने का फजल दिया गया है, वो मासूमियत उसको कायम रखो। लेकिन दुनिया में होशियार भी रहना है, क्योंकि आपकी तो तरबियत हो गई कि आपको पता है कि मैंने खुश रहना है, मैंने अपनी पाकीज़गी को बरकरार रखना है। लेकिन लोग तो नहीं ऐसे होंगे। उसमें यीशु मसीह शागिर्दों को साफ साफ बताया, मैं तुम भेड़ों को भेड़ियों के दरमियान भेजता हूं। यीशु ने बताई शागिर्दों को, सारी बात बताई। और इसी तरह यीशु ने तरबियत के लिए जब पाक दिल की बताई बात, तो यीशु मसीह ने इसके साथ साथ ये भी बताया, मुबारक है वो जो रहम दिल हैं। अब रहम दिली की बात यीशु ने फिर बताई, ये एक और तालीम थी शागिर्दों के लिए। फिर जैसे मैं बता रहा, बच्चे के लिए मुश्किल थी, शागिर्दों के लिए मुश्किल होगी बात, रहम दिल होना। तो रहम दिल होना ये खुदा की सिफत है। अब देखें कि कोई भी शख्स दुनिया में जो भी है, चाहे वो जो भी हो, खुदा उस पर रहीम है, खुदा उस पर रहीम। उसका सूरज नेकों और बदों सब पर चमकता है। हम परेशान होते हैं कि अच्छा वो शख्स देखे वो पता नहीं कैसा है, और वो भी रोज ही पराठे खाता है, और हम कभी कभी पराठे शायद खाते। हम ऐसे ही सोचते हैं उसका सूरज सब पर चमकता है। लेकिन खुदा हर एक को मौका देता है ताकि वो तौबा करे, तौबा की नौबत का मौका देता है। लेकिन हम अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करें, हम मुआजना नहीं करेंगे अपनी जिंदगी पर।
तो शागिर्दों को यीशु मसीह ने बताया कि रहम दिल, मुबारक है वो जो रहम दिल हैं, खुदा रहम करता है। माँ को खुदा ने यही जज्बा दिया रहम का। आपने देखा कई दफ़ा बच्चे माँ को तंग भी करें, बच्चे को कई दफ़ा माँ कहे चल बाहर, आज तुझे रोटी नहीं देनी, तो क्या ख्याल है 10 मिनट के बाद माँ बुला लेती कि नहीं बुलाती? जी हाँ, माँ बुला लेगी। वो बाहर गर्मी बड़ी है, अंदर आ जाओ, या सर्दी बहुत, अंदर आ जाओ, बच्चे खाने का टाइम है। रहम दिल होना। आज की दुनिया में रहम दिल ज्यादा है या बेरहम ज्यादा है? जी ओहो, काम तो काफी खराब है। तो अजीजों, अगर बेरहम ज्यादा है, ठीक है, अगर एक लिस्ट बनाई जाए, लाइन बन जाए, हम कौन सी लाइन में होंगे? रहम दिल वाली लाइन में या बेरहम लाइन? जी हम जिस भी लाइन में। लेकिन अगर कोई बेरहम है तो रहम दिल बन सकता है कि नहीं बन सकता? बन सकता, वो भी बन सकता। हज़रत यीशु मसीह ने भी शागिर्दों को एक और मुश्किल बात बता दी, और मुश्किल बात ये बताई कि दुश्मनों को प्यार करो। और शागिर्दों ने हजरत मूसा की शरीयत के मुताबिक क्या सीखा था? दांत के बदले दांत, यही सीखा था, आंख के बदले आंख। शागिर्दों ने सोचा कि ये तालीम काफी मुश्किल है, और इसलिए यीशु मसीह एक दफा शागिर्दों, लोगों को जब सुना ना, कई शागिर्द छोड़कर चले गए, यीशु मसीह ने कहा कि क्या आप भी चले जाना चाहते हो? क्योंकि लोग कहते थे कि ये तालीम सख्त है, ये तालीम सख्त है। तो एक शागिर्द बड़ी जुर्रत के साथ आया और उसने कहा कि ए खुदावंद, हम किसके पास जाएं? हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे पास। ये जो शागिर्दों को यीशु मसीह ने तरबियत दी, और ये क्योंकि तरबियत बिल्कुल फर्क थी, उन्होंने यही सीखा था, दांत के बदले दांत और आंख के बदले आंख, ये सीखा था। जैसे हमने भी सीखा ईंट का जवाब पत्थर, हमने भी यही सीखा, ऐसे ही हमने भी सीखा। अब ये जो तालीम है, क्योंकि फर्क है, दुश्मनों को प्यार करो। दुश्मनों को कोई जूस शूस पिलाता है? नहीं पिलाते, नहीं पिलाते, कोई भी नहीं पिलाता। मुश्किल, आज भी मुश्किल है। ये तरबियत की बात है, ये तरबियत की। यीशु मसीह जब तालीम दे रहे थे, इसलिए तालीम का जिक्र किया गया, तालीम और तरबियत का। ऐसे जब पाक रूह मिलता है, इसलिए हमने अब देखा कि जब दूसरी तिलावत में कि ये राज छुपा रहा, और हमें अब पता चला कि सबसे जो बड़ी बात है इंसान होने के लिए, अपने आप पर इंसान, अपने इंसान होने पर फख्र करे कि मैं काबिले एहतराम हूँ, और दूसरा भी काबिले एहतराम है, मैं भी काबिले इज्जत हूँ, दूसरा भी काबिले इज्जत है। खुदा उसका भी राज़िक है, खुदा मेरा भी राज़िक है, उसका भी बनाने वाला और पालनहार है, मेरा भी वही बनाने वाला और पालनहार है। तो जब ये बात समझ आ जाएगी, हम हर इंसान की इज्जत करेंगे। सबसे पहले तो अपनी इज्जत करेंगे, फिर हमें ये नहीं फिक्र होगा कि मेरा रंग कैसा है, मेरी शक्ल सूरत कैसी है, चेहरे के खदो खाल कैसे हैं, ये तो खत्म, ये तो सेकेंडरी बात है। सबसे पहले कि हम इंसान हैं, खुदा ने हमें बड़े प्यार से बनाया है, और मेरा बनाने वाला बड़ा मेहरबान है। उसने मुझे फर्क बनाया है, उसने मुझे फर्क रंग दिया है, जिसामत फर्क दी है, ताकि मैं पहचाना जाऊं। अपनी ख्वाहिश हो सकती है कि मैं उस तरह का होता, या उस अदाकार की तरह का होता, या ये तो अपनी ख्वाहिश है, लेकिन बनाने वाले ने आपको मुनफर्द बनाया है। और इसलिए लिखा है, इशाया नबी में लिखा है 43 बाब में कि तू मेरी निगाह में बेशकीमत है, बेशकीमत है। तो आज हम जब घर जाके शीशे में भी देखेंगे तो हम ये कहेंगे कि मैं खुदा की निगाह में बेशकीमत हूँ, और अपनी निगाह में भी बेशकीमत हूँ कि नहीं हूँ? जी, अपनी निगाह में भी बेशकीमत हूँ। ऐसे जो शख्स अपनी निगाह में बेशकीमत ना होगा, उसकी कदर और कीमत कौन जानेगा? सबसे पहले तो अपनी निगाह में भी बेशकीमत होना कि खुदा ने मुझे फर्क बनाया है। अगर हम 4-5 बहन भाई हैं तो थोड़े थोड़े सारे ही फर्क है, फर्क है या नहीं है, ये पहचान के लिए खुदा ने बनाया। तो उससे हम खुश होते हैं कि मेरा खुदा इतना बड़ा खुदा है, इतना लामहदूद है कि दुनिया में बिलियन ट्रिलियन पता नहीं कितने लोग हैं, अनगिनत लोग हैं, और मैं उनमें से एक मुनफर्द शख्स हूँ। मेरे फिंगरप्रिंट भी फर्क है,
ये खुदा, उस खुदा पर ईमान रखते हैं। जो तो खुदा आज हमें देखिए कितनी बरकतें देता है, और खुदा ही है जो चाहता है हम खुश रहें, हम खुश रहें। अब खुश रहने के लिए फिर यही है कि जो चीज़ें हमने गलत सीख ली उनको आहिस्ता आहिस्ता यीशु मसीह की तालीम के साथ हम उनको डिलीट करते जाएं। मिसाल के तौर पर इनको नहीं मिलना तो डिलीट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हाँ, हर एक को मिलना चाहिए। इसलिए मुकद्दस पौलुस रसूल कहते हैं मकदूर भर, यानी जहां तक हो सके हर एक से सुलह रखो, यानी दुश्मनी किसी से ना रखो। मकदूर भर हर एक से सुलह रखो। तो इसका मतलब यही कि आप अपने, जब ये भी कहा गया ना कि दुश्मन के लिए भी, दुश्मन को प्यार करो, इसका मतलब यही है कि तुम किसी के दुश्मन ना बनो। मिसाल के तौर पर अगर किसी जगह पर पहले ही 4 लोग दुश्मन हो एक दूसरे के, और अगर को मुझे भी बताए बिशप जी फलां ने ना आपके बारे कुछ ये कहा, और मैं भी गुस्से में आकर कहूं उसको ठीक कर लेते हैं, तो मैं भी दुश्मन बन जाऊं। तो पहले कितने दुश्मन थे? 4, अभी कितने हो गए? 5। दुश्मन बढ़ाने चाहिए या कम हो तो अच्छा है जी? हाँ, दुश्मन तो एक ही बड़ा नहीं, वो इधर के सारी जिंदगी तंग करता है। तो दुश्मन यानी ये है कि मैंने किसी का दुश्मन नहीं बनना। किसी की ख्वाहिश है कि मैं फलां का दुश्मन बन के रहूंगा, किसी की ख्वाहिश नहीं, क्योंकि ये भी सिखाया, ये हमने सीखा है, खुदा ने नहीं ये बनाया, ये हमने सीखा है, दुश्मन बनना सीखा है। तो यीशु यही कहते हैं कि जो सीख लिया उसको खत्म करो, दुश्मनों को प्यार करो, सताने वालों के लिए भी दुआ करो, ताकि तुम भी सताने वाले ना बन जाओ। तो जी, तो ये पाक रूह कलाम हम सब ने पढ़ा है और पढ़ते रहते हैं। कलाम को पढ़ना और बात है, लेकिन कलाम पढ़कर खुदा से फजल मांगना, क्या खुदा मुझे इस कलाम को समझने का पाक रूह अता कर, समझने के लिए, ताकि जैसे पौलुस रसूल आज की किताब तलावत में कहते हैं कि जो कलाम मैं तुम्हें पेश करता हूं आदमियों की किसी फिलॉसफी से नहीं आया, बल्कि हम पाक रूह से ये बात करते हैं, पाक रूह से, यानी आप पाक रूह से इसको समझते हैं। और ये पाक रूह बड़ी संजीदगी के साथ, देखिए अब जब हम पाक रूह में रहते हैं तो किसी के, ना तो हम किसी का दुश्मन बनते हैं, ना किसी से लड़ाई करते हैं, ना ऊंची बात करते हैं, ना किसी को बुरा भला कहते हैं, ना सोचते हैं मैं ही अच्छा हूँ, मैं, हम सबसे अच्छे हैं वो इतने अच्छे नहीं, हम सबसे काबिल हैं वो इतने काबिल नहीं, हमारा ख़ानदान पता नहीं क्या है, वो ये तो ऐसे ही हैं। नहीं, हम फिर हर एक की कदर करते हैं, इंसान की इंसान होते हुए कदर करते हैं, और रुतबा किसी का है तो रुतबे की इज्जत करते हैं। रुतबे की इज्जत करनी चाहिए, यानी अम्मी अबू, क्योंकि खुदा ने उनको रुतबा दिया है, माँ है, बाप है, उसकी इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं। जब आप गेट पर आते हैं, चौकीदार है, उसको रुतबा है, उसका कोई चौकीदार है, तो उसकी भी इज्जत करनी चाहिए। तो ये जब ये हम देखते हैं कि यीशु मसीह में बिल्कुल नई तालीम, और हम देखते हैं कि इस तालीम को जब शागिर्द समझते गए, यीशु मसीह ने 3 साल उनको तरबियत दी, समझते गए कि वाकई ही इंसान काबिल कदर है, उसकी इज्जत की जाए, और पाक रूह के साथ उन बातों को समझते गए। और शागिर्दों ने ये वाली बात फिर उन्होंने कब समझी कि पाक जुमे वाले दिन यीशु मसीह सलीब पर थे, और एक शख्स ने यीशु मसीह की पसली में नेजा मारा, तो यीशु मसीह ने क्या कहा? इसको पकड़ लो, या कुछ और कहा? क्या कहा? क्या कहा? इसको माफ। यीशु मसीह ने दुआ बल्कि की, ऐ बाप इन्हें माफ कर। शागिर्द समझ गए कि जो तालीम यीशु देते हैं कि आप इंसानों की कदर करते रहो चाहे वो आपको तंग करें, यीशु मसीह ने कहा कि ऐ बाप इन्हें माफ कर। शागिर्दों को समझ आ गई कि अब हमने इस बात की गवाही देनी है कि खुदा प्यार है, खुदा मोहब्बत है, और यीशु मसीह को खुदा ने इसलिए दुनिया में भेजा है ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह फिर आसमान पर जा रहे थे, तो यीशु मसीह ने शागिर्दों को कहा कि तुम यरूशलेम से बाहर ना जाना,
बाप के वादे का इंतजार करो, वो तुम्हें पाक रूह देगा, तुम पाक रूह लेकर जुर्रत पाओगे और यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, दुनिया के इंतहा तक मेरे गवाह बनोगे। जो ये बच्चे खुसूसी तौर पर हम सब भी यीशु की मोहब्बत के गवाह हैं, और इस बात को शागिर्दों ने समझ लिया। शागिर्द पहले भी कलाम को जानते थे, लेकिन जिस दिन लिखा है, आज की जो पहली तिलावत है, ईद खमसीन का दिन आया और वो सब एक ही जगह में जमा थे और वो दरवाजे बंद करके बैठे थे। तो इस्तेकाम वाले बच्चे बताएंगे कि उन्होंने दरवाजे बंद करके बैठे थे, तो क्या बहुत सर्दी थी दरवाजे बंद किए थे या कोई और वजह थी? जी हाँ, डर के बैठे जी? किससे डर रहे थे? यहूदियों के खौफ से, यहूदियों की खौफ की वजह से, यहूदियों की खौफ की वजह से वो दरवाजे बंद करके बैठे थे। लेकिन लिखा है कि जब पाकरू मिलता है, लिखा है कि पाकरू आके शोलों किसी जुबानों में उन पर उतरा, उन पर उतरा और वो फर्क फर्क जुबानें बोलने लगे जैसे रूह ने उन्हें सिखाया। रूह ने उनको एक नई जुबान सिखा दी, और वो जुबान क्या थी? जुबान थी कि वो ऐसी जुबान जो बिल्कुल फर्क थी, प्यार की जुबान। और लिखा है कि मुकद्दस पतरस, फिर उन्होंने दरवाजे खोल दिए। पहले वो डरते थे, ये डरे हुए लोग, ये सहमे हुए लोग पहले अंदर बैठे थे, यहूदियों से डर रहे थे कि यहूदी हमें मारेंगे, लेकिन पाकरू मिलता है, दरवाजे खोलकर बाहर आ जाते हैं। और मुकद्दस पतरस सब लोगों से मुखातब होते हैं कि ऐ यहूदी मर्दों, जिस यीशु को तुमने सलीब दी, वो नविश्तों के मुताबिक इस दुनिया में पैदा हुए, नविश्तों के मुताबिक उन्होंने दुख भी उठाए, और नविश्तों के मुताबिक वो जी उठे हैं, और हम उसके जी उठने के गवाह हैं, जी उठने के गवाह। और जो हम देखते हैं कि ये डरे हुए लोग, ये सहमे हुए लोग, जब पाकरून को मिलता है तो उनकी जुबान बदलती है, उनका लहजा बदल जाता है, उनकी बात करने का अंदाज बदलता है। जैसे ये सब चीजें बदलती हैं तो डर खत्म हो जाता है। तो ये सहमे हुए लोग जब बाहर आकर तालीम देते हैं, तो लिखा है पहले ही दिन इस तालीम से 3000 लोग यीशु पर ईमान ले आते हैं। 3000 लोग, 3000। हम देखते हैं कि डरे हुए शख्स की जुबान फर्क होती है, लहजा फर्क होता है, और डराने वाले का लहजा फर्क होता है, ये नहीं होता। जब उस्ताद गुस्से में आ जाए तो लहजा फर्क होता है, वो डराने वाला बनता है। माँ बाप भी जब गुस्से में आ जाते हैं फिर वो डराते हैं, लहजा फर्क होता है। तो उसी जो डरे हुए का लहजा फर्क होगा, लेकिन शागिर्दों के ज़हन से अब डर खत्म हो गया। अब डर खत्म होने का मतलब ये नहीं कि वो बाहर निकल कर कहते हैं अच्छा अब हम किसी के गले पड़ जाएंगे, नहीं। डर ये खत्म हुआ कि उनको अपने जीने के मकसद का पता चल गया। और मकसद क्या था जो यीशु ने उनको दिया था कि पाकरू तुम्हें मिलेगा, इसके बाद तुम मेरे गवाह बनोगे। और शागिर्दों ने गवाही दी, लिखा है मुकद्दस पतरस ने गवाही दी, यीशु की गवाही दी कि ऐ यहूदी मर्दों, जिस यीशु को तुमने सलीब दी वो जी उठा है और हम उसके गवाह हैं। ये गवाही दी। अजीजों, आज हम भी खुसूसी तौर पर जब इस्तेकाम मिलता है तो यही ईमान है कि ये बच्चे अब यीशु मसीह की गवाही देने के लिए तैयार। सब गवाही देते हैं अपने अपने कामों से। और हम देखते हैं कि वहाँ 15 किस्म की जुबानें बोलने वाले लोग हैं, और हर एक को समझ आ जाती है कि ये मेरी ही बोली बोल रहा है, हर एक को। और क्यों? क्योंकि इनका लहजा फर्क है। आज इनके लहजे में मिठास है, कहने का अंदाज फर्क है, बात करने का अंदाज हर एक को समझ आता है। ऐसे जब पाकरू मिलता है, जिस घर में भी पाकरू का पहरा है वहां पर लहजा फर्क है, जुबान फर्क होगी, उस घर का माहौल फर्क होगा, उस घर का माहौल फर्क होगा, लहजा फर्क हो जाएगा। तो जो हम देखते हैं कि जहां पर जिस घर में भी थोड़ी थोड़ी नाकबूलियत हो तो वहां पर 4 लोग ही बात एक दूसरे से करें तो समझ नहीं आती। कई दफा कहते हैं अच्छा आपका मतलब ये था, मैंने ये कर दिया, बात की समझ नहीं आती। और जहां पर
मुकद्दस पतरस बात करते हैं 15 किस्म की जुबानें बोलने वाले लोग हैं, सबको समझ आ रहा है। जो आज जब हम भी अपने घरों में अपने लहजे को बदल देंगे, बात फर्क हो जाएगी। ये अब पाकरू से हम कहेंगे कि ए पाकरू तो हमारी हदायत कर, हम अपनी तरबियत करना चाहते हैं, तरबियत करना चाहते हैं। और उस तरबियत के लिए हमें दुआ की जरूरत है, अपने आप को जानने की जरूरत है। हम देखते हैं कि दो खानदान थे, एक खानदान का नाम था खानदान ए। क्या था? खानदान ए। ये जो खानदान ए था, ये खुदा ने उनको बड़ी इज्जत बख्शी। ये किसी जगह पर मैनेजर था, बहुत बड़ी पोस्ट थी और बहुत दुआगो थे। नमाज पर हर इतवार को बच्चों के साथ आते थे और उन्होंने ये फैसला किया था, दोनों मियाँ बीवी ने, कि हमने किसी की बुराई नहीं करी, घर में किसी की बुराई नहीं करी, किसी की चुगली नहीं लगानी। हम चुगलियां लगाकर अपना टाइम वेस्ट करेंगे और अपनी जो एनर्जी खुदा ने हमें अच्छे कामों के लिए दी है, यानी जो मोहब्बत की ताकत है, उसको हम कमज़ोर करते जाएंगे। हमने किसी की बुराई नहीं करनी, गुस्से को करने के बजाय सब्र से काम लेंगे, यानी गुस्सा एकदम गुस्सा नहीं करेंगे। हमने देखा कई लोगों को बड़ा ही गुस्सा आता है गुस्सा, कि नहीं आता? हो सकता है कि बिजली आ जाए या चली जाए, उस पर भी गुस्सा आ गए, उस पर भी गुस्सा, गालियां निकालते रहे। उन्होंने कहा कि हम गुस्सा भी नहीं करेंगे, गुस्से की जगह सब्र से बातचीत करने। तो क्या हुआ, और बच्चों की तरबियत पर बच्चों को भी उन्होंने यही बताई। तो दूसरा खानदान था बी, तो खुदा ने उनको भी काफी कुछ दिया, लेकिन वो कभी कभार गिरजे आते, अगर ईस्टर बड़े दिन पर ऐसे गिरजे आते, और कभी कभी उनके घर में जब अजीज रिश्तेदार इकट्ठे होते, तो जो अजीज रिश्तेदार आता उसकी अच्छाइयाँ होती, जो उधर नहीं होता था उसकी बुराइयाँ होती। और बच्चों ने भी यही बात सीखी, बुराई करना, गुस्से में आना, बच्चों के साथ लड़ाई कर लेना। तो हुआ ये कि एक दिन खानदान ए के घर में एक मेहमान आ गया। उनका कोई अपना दोस्त था, रिश्तेदार था शायद, तो उनका बच्चा था कोई 10 साल का। तो माँ बाप बैठे हुए थे, उन्होंने कहा चले आप भी बच्चे पानी पिला देना। तो बच्चा फौरन वहाँ पर गिलास पड़ा हुआ था, जग भी था, तो बच्चे ने गिलास में पानी डाला तो लबालब भर लिया ऊपर तक। और जब बच्चा तेज चल कर आ रहा था, थोड़ा सा 1-2 कदम उसने उठाए तो थोड़ा सा पानी गिर गया। तो माँ बाप ने उसको थोड़ा सा देखा, तो माँ बाप ने उसको बताया कि बेटा पहली तो बात है, गिलास को इतना नहीं भर के लाते, पानी इतना नहीं भरना, थोड़ा सा उसको कम रखना है और तेज़ नहीं चलना चाहिए, पानी गिर जाता है। तो शाबाश, आइंदा ऐसा नहीं करना, इधर बैठ जाओ पानी। वो बैठ गया। तो खानदान बी के घर में भी मेहमान आए, तो इत्तेफाक हुआ कि वो भी दोनों मियाँ भी बैठे हुए थे। उन्होंने भी बच्चे को कहा, उन्होंने कहा बच्चा ये पानी पिला देंगे। वो भी इत्तेफाक से वो भी भर के ले आया, वो भी तेज चला, उससे भी पानी गिरा। उसको माँ ने भी गुस्से से देखा, बाप ने उसको कहा, उसने कहा तू अंधा हो गया है, पानी गिरा दी, बेइज्जती करा, चल बाहर चला। वो बच्चा उधर गिलास रख के बाहर चला गया। कौन सा खानदान है जिसने बच्चे की इज्जत बहाल रखी? जी, कौन सा खानदान है जिसने बच्चे की तरबियत की? किस खानदान का लहजा अच्छा था? और कौन सा खानदान है जिसने बच्चे की बेइज्जती कर दी? बी। किसका लहजा तरबियत वाला था, ए का या बी का? ए का। बी के लहजे में कोई तरबियत भी नहीं थी। वैसे हमारे खानदान कौन से ज्यादा हैं, ए ज्यादा या बी ज्यादा? चलो जो भी हो ठीक है, अपना अपना आप खुद ही अंदाजा करते हैं, जो भी हो। क्या जो बी हैं, अगर बी हैं तो बी ए बन सकते हैं कि नहीं बन सकते? जी हाँ अजीजों, जब हम पाक रूह की हदायत में रहेंगे और ये सोच लेंगे कि खुदा ने हमें ये तोहफे दिए हैं, औलाद खुदा का तोहफा है, इनकी हमने तरबियत करनी है ताकि ये भी हमेशा ही खुश रहें। खानदान ए ने ये सोच लिया था कि खुदा ने हमें बहुत कुछ दिया है, बच्चों में तकब्बर नहीं आने देंगे, मगरूरी नहीं आने देंगे, किसी की बुराई नहीं करेंगे। ये बच्चे कुदरती तौर पर जो खुदा ने इनको खूबियाँ दी हैं उसके मुताबिक बढ़ेंगे। कुदरती चीज़ें खुदा ने जो मुझे और आपको दी हैं, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया है
کہ قدرتی طور پر ہم میں محبت ہے، ہم میں قدرتی طور پر عزت ہے. جیسے یہ درخت ہے نا، یہ پودا ہے، یہ پودا، یہ جو بھی پھل، یہ گلاب کا پھول ہی ہو، یہ بنایا ہی اس لیے خدا نے کہ اس سے گلاب کھلے، تو اس سے گلاب ہی نکلا اور وہ قدرتی طور پر بڑھتا گیا. اسی طرح میں اور آپ بھی خدا ہم سے انسان ہونے کا پھل دیکھنا چاہتا ہے. جب ہم بھی قدرتی طور پر اپنے آپ کو بڑھنے دیں گے کہ ہم میں محبت ہوگی، ہم میں عزت ہوگی، ہر ایک کی احترام ہوگا، اور تو ہم ان خوبیوں کے ساتھ رحم دلی ہوگی، قبولیت ہوگی، معافی ہوگی، ہم قدرتی طور پر ان خوبیوں کے ساتھ آگے بڑھیں گے. اور اگر ہم نے نفرت کرنی سیکھی تو یہ نفرت جو ہے اٹ از ناٹ نیچرل، یہ سیکھی گئی ہے. برائی کرنا سیکھا گیا ہے تو یہ نیچرل نہیں ہے. تو اب ہم پھر نیچرل بڑھیں گے، اپنے آپ کو بڑھائیں گے. میری دعا ہے خدا آپ سب کو برکت دے تاکہ ہم خوش رہیں، اور دعا کریں گے کہ خدا پاک روح ہم پر نازل فرمائے تاکہ ہم اپنے ہونے کو پہچانیں اور شاگردوں کی طرح یسوع کے جی اٹھنے کی گواہی دیتے رہیں. مسیح خداوند کے وسیلے سے.